दोस्तों आज मैं आपको बहुत बेहतरीन वीडियो दिखाने वाला हूँ कि एक बंदा जो है डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करता है। तो आइए दोस्तों पहले ये वीडियो देखते हैं फिर सब बात करते हैं। Appreciated the class that you gave. It had a good impact on people, as well as the preaching mood that you carried about the Supreme Lord, that is Allah, is most praiseworthy. This is what the society really needs today. But as of some things which I heard from you, there were many questions, but I'll ask one as of the formality is considered. You said that. Brother, please may I know your name, brother? Oh, sorry. I am Dilip Mishra, and I have been studying Gita and Bhagavatam and various scriptures. And I am B computers in profession, and I am doing software job. One of my colleagues, Majid Khan, he invited me, and basically I came to know about you when I was working with him, and we were both undergoing training. So he saw that I practiced something, and he asked me some questions, like you had already talked of Natasya Pratimasti and various other things. And I had refuted all the arguments in the sense that, based on scriptures, I said that what Zakir Naik is saying is wrong. So he could not refute, counter argue my arguments. So he said that when we will have a seminar, we will talk to Mr. Zakir Naik directly. I said, if you allow, I can talk. I have no problem. So if you don't mind, can I ask you a question? Sure, most welcome, brother. Thank you. Now you said that actually nobody is the son of God. So I do understand that as of begetting a son, obviously nobody is directly begot as a son here. But in Bhagavad Gita, at various places it is already mentioned that Krishna is saying, Mame vangsho jiva loke jiva bhutana sanatana manasasthani indriyani prakritisthani karshati. I know you are already knowing about it, but I'll just read the translation if you don't mind. It says, the living entities in this conditioned world are my eternal fragmental parts. Due to the conditioned life, they are struggling very hard with the six senses, which include the mind. Here, the Supreme Lord Krishna is saying that you are my part and parcel. And there is one more special shlok, which says that I am the father, I am the mother, I am the seed-giving father. So that is 9.17. If you want, I can just read it for you. It says, Pitahamasya jagato mata dhata pitamaha vedyam pavitram omkaram mriksam yajurevacha. I'll just read the translation. I am the father of the universe, the mother and the support and the grandsire. I am the object of knowledge and the purifier and the syllable Om. I am the Rig, the Sam and the Yajurvedas. So here if we see that the Supreme Lord is saying, all of are my sons, I take care of them. So I do agree with your first point saying that somebody is directly begotten as a son. That can be denied. But as of spiritual part and parcels, we are surely the son of the Lord and we deserve his mercy. So I felt that this bit contradicts with what you already said. भाई साहब ने एक अच्छा सवाल पूछा है. I'm sorry, I'll answer in Urdu because the program is in Urdu and I believe you can understand Hindi. MashaAllah. My Hindi is also not that good. It is simple with all the grammatical errors. भाई साहब ने सवाल पूछा है, कहा है कि उन्होंने मेरी तकरीर सुन चुकी है और कुछ बातों पे उसे एतराज़ है और उन्होंने कहा उनके दोस्त से कि जाकिर कहते हैं नात से प्रतिमस्ती और मैं इसमें नहीं मानता हूँ, क्या मैं कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? मैंने बोला बेशक. और उनके सवालात में उनने कहा कि जब मैं कहता हूँ कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बेटा नहीं जना, लेकिन उन्होंने भगवद गीता के 2 श्लोका का जिक्र किया और एक श्लोक में लिखा था कि श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं आपका पिता हूँ, मैं आपका माता हूँ. तो ये सवाल करने वाले कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि खुदा बेटा नहीं जनता, गॉड कैन नॉट बिगेट अ सन, लेकिन आम सन हो सकता है. आम सन, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू रीड द बाइबल, बाइबल सेज इन द बुक ऑफ रोमन्स that all those who are led by the Spirit of God, they are sons of God. जो भी अल्लाह के अहकामात को मानता है वो अल्लाह का बेटा है. उस अंदाज में अगर आप कहते हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं, आई हैव गॉट नो प्रॉब्लम. हम भगवान के बच्चे हैं. मिसाल के तौर पे
अगर कोई ज़ईफ़ इंसान अगर मुझे कहेगा या कोई नौजवान को कहता है बेटा इधर आओ, तो वो फौरन बोलेगा जी चाचा जान और आएगा। लेकिन अगर कहेगा कि आप मेरे जने हुए बेटे हैं इधर आओ, तो वो उसको एक लाफा मारेगा। बेटा मतलब सन, वो छोटा आदमी है, ही इज गिविंग रिस्पेक्ट। मिसाल के तौर पे मेरे इंट्रोडक्शन में शेख फैजुर रहमान ने कहा कि शेख दीदात ने कहा डॉक्टर जाकिर नाइक को बेटा, और फिर बेटा मतलब मैं उनकी इज्जत करता हूं, वो मेरे वालिद के समान है। लेकिन अगर वो लिखते थे कि मेरा जना हुआ बेटा, तो प्रॉब्लम है। आप समझ रहे कि नहीं? दिस इज द लैंग्वेज। तो इस तरीके से अगर आप बेटा कहते हैं और कहते हैं कि गॉड इज फादर, तो अगर आप कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि वो हमारा पालने वाला है, वो हमारा खालिक है, वो हमारा रब है, उस तरीके से आप कहते हैं मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसीलिए कुरान मजीद में 99 सिफत है अल्लाह ताला की, उसमें से अब जो आसान है जानबूझ के नहीं लिखा है, लेकिन रब जो और मुश्किल है, रब बोलना अब से और मुश्किल है, जानबूझ के अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अपने सिफतों में अब को नहीं लिखा। क्यों? लोग उससे गलत मानी ले सकते हैं। वरना फादर बोलना अच्छी बात है और हम आमतौर पे कहते हैं बेटा इधर आओ, कोई हर्ज नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं बाइबल में अगर कहते हैं कि जो लोग अल्लाह की बात मानते हैं वो अल्लाह के बेटे हैं, मुझे कोई हर्ज नहीं। उस तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम बेशक अल्लाह सुब्हाना व तआला के भेजे हुए अजीम पैगंबर थे, वो बेशक बेटे थे। लेकिन अगर कोई कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जने हुए बेटे हैं, तो ऑब्जेक्शन। आप समझे ना? तो बाइबल में किधर भी नहीं लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जने हुए बेटे हैं। एक वर्स है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16, जिसमें लिखा है क्या फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन हूसोएवर बिलीवeth इन हिम शैल नॉट डाई बट हैव एवरलास्टिंग लाइफ। तो ये वर्स जो बाइबल की है, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16, फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन whosoever believeth in him shall not die but have everlasting life। ये एक ही जगह पे लिखा हुआ है begotten son। लेकिन जब आप RSV पढ़ते हैं, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ द बाइबल, रिवाइज्ड बाय 32 स्कॉलर्स, 32 स्कॉलर्स, क्रिश्चियन स्कॉलर्स ऑफ द हाईएस्ट एमिनेंस, वो लिखते हैं कि ये लफ्ज जना हुआ, ये लफ्ज बिगॉटन इंटरपोलेशन है, फैब्रिकेशन है, बनावटी है, ये बाइबल में था ही नहीं। और वो क्रिश्चियन स्कॉलर्स ने ये लफ्ज को बाइबल के बाहर उठा के फेंक दिया है। इसी तरीके से आपने जो कहा कि भगवत गीता में लिखा है, श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं माता हूं, मैं पिता हूं, इन कॉन्टेक्स्ट मुझे प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि मैं नहीं कहूंगा कि खुदा हमारे वालिद है। क्यों? क्योंकि लोग को गलत फहमी हो सकती है। लेकिन अगर कोई इंसान सही कॉन्टेक्स्ट में कहता है कि हम अल्लाह के बच्चे हैं, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन जने हुए नहीं। इसी तरीके से आप पढ़ेंगे गीता, वेद। वेद सबसे ऊंची किताब है। वेद के बाद आता है उपनिषद, उपनिषद के बाद आता है इतिहास। तो अगर आपको जानना, इतिहास के अंदर महाभारत का एक हिस्सा है भगवत गीता। अगर आपको कोई शक है इसकी मानी में क्या हो सकता है, अगर 2 मानी निकलती है, तो आपको जाना चाहिए वेद के पास या उपनिषद के पास। आप अगर उपनिषद पढ़ते हैं, श्वेताश्वतर उपनिषद चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 9, उसमें लिखा है ना चदिसे कसिज जनिता ना चदीपा, जिसके मानिए उस भगवान, उस खुदा का ना वालिद है ना वालदा है। He has got no superior, no father, no mother। मैं कंप्लीट करता हूं फिर मौका दूंगा। इसी तरीके से आपने कहा कि मैं ना तस्वीर प्रतिमा अस्थि को नहीं मानता हूं। क्या आप वेद को नहीं मानते? आप ये कह सकते हैं कि मैं जाकिर जो ट्रांसलेशन देता है मैं उसमें नहीं मानता हूं, तो मैं जवाब दे सकता हूं। तो आपके भगवत गीता का जवाब तो दे दिया हूं, लेकिन पहले जब आपने कहे ना तस्वीर प्रतिमा अस्थि, ये हवाला है श्वेताश्वतर उपनिषद चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 19, और आता है यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 3 में, जहां लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति। प्रतिमा एक संस्कृत वर्ड है। अगर आप संस्कृत डिक्शनरी में जाएंगे, लिखा है कि प्रतिमा के मानी है बुत, के मानी है फोटोग्राफ, के मानी है स्टैच्यू, उसके मानी है स्कल्पचर।
तो जब वेद और श्वेतासूत्र उपनिषद में आता है ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, उस खुदा का कोई बुत नहीं है, उस खुदा की कोई तस्वीर नहीं, उस खुदा का कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। तो ये मानी है, अगर आपको संस्कृत नहीं पता है तो आपको जाना चाहिए संस्कृत डिक्शनरी में, और हमारे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में अल्हम्दुलिल्लाह संस्कृत डिक्शनरी है। फिर हम कह सकते हैं कि मानी में आप मानते कि नहीं मानते। तो इसीलिए कुरान में लिखा है सूरह नहल में सूरा नंबर 16 आयत नंबर 43 में, और सूरह अंबिया में सूरा नंबर 21 आयत नंबर 7 में, फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। अगर आपको नहीं पता है तो उससे पूछिए जो इस मैदान का माहिर है। और जो मैं कह रहा हूं, आपको कई कमेंट्री दिखाऊंगा जो अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू पंडितों ने लिखी है। आप अगर आर्य समाज की किताब पढ़ेंगे तो जो मेरी तकरीर है वो खुद मैं अपने जहन से नहीं कहता हूं, मैं तहकीक करता हूं और हवाला भी देता हूं। वो अलग बात है कि आपको इल्म नहीं होगा संस्कृत का, इसीलिए आप इस बात में नहीं मानते। आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन ब्रदर। Yeah, I would like to continue if you don't mind. First part, what you said was that we all are sons of God. If we say that, there is no harm. And as of saying that we are begotten sons of God, that is not accepted, and that is true. So my kind request is that when you speak, because when you said, people carry this in their mind, that anyone who says that you are sons of God, the Muslim community will oppose. So that will just create a disharmony without understanding the context. So that was my concern. Just hold on. There is never a disharmony, brother. If you say we are children of God, most Muslims will not object. They only object when a Christian says that Jesus is Son of God, peace be upon him, because we know the context. We object when you take a deity's name and say that this deity is the Son of God. Most Muslims will not object if you say that the human beings are children of God. I don't know any. So what? Because we know the context. That's the reason, brother, when you ask a question, you should realize, in general terms, son means begotten son. It is a dual meaning. When we use son, it's just in context. So therefore, we are very careful. We don't want anyone to misunderstand. हम ये नहीं चाहते कि गलत फहमी हो, इसीलिए हम जानबूझ के ये भी नहीं कहते कि हम बेटे हैं खुदा के, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर कोई गलत फहमी लेता है मेरे अल्फाज से, हम इसीलिए वी आर वेरी केयरफुल, हम जानबूझ के एहतियात लेते हैं, और ऐसे अल्फाज जिससे गलत फहमी पैदा हो सकती है, खुसूसन खुदा के लिए, भगवान के लिए, हम क्या करते, तहकीक करते हैं, और वी आर वेरी केयरफुल दैट नॉट टू यूज दिस वर्ड। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन ब्रदर। जी दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने आज की वीडियो देखी है, तो दोस्तों इस भाई का भी जो सवाल था आप लोगों ने सुना है कि जैसे कि डॉक्टर जाकिर नाइक से इसने कहा कि आप कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है अल्लाह ताला के बेटे नहीं है, लेकिन हमारे श्री कृष्ण जो है उसने यही कहा था कि मैं जो हूँ आप लोग का बाप भी हूँ और आप लोग का सब कुछ हूँ। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे दोस्तों? जैसे कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत बेहतरीन जवाब दिया है इस लड़के को कि कोई भी ऐसे कह सकता है कि इधर आओ मेरे बेटे, इधर आओ, ये करो वो करो। अगर कोई चचा कोई किसी भतीजे को अगर बुलाता है तो वो भी यही कहेगा कि मेरे बेटे इधर आओ। अगर यही चाचा अगर उससे यही कहे कि नहीं आप मेरे जो है वो मुंह बुलाए बैठे हुए हैं, तो ये जो बच्चा है ये उसको पकड़ कर मारेगा दोस्तों। क्योंकि कोई भी जो है दोस्तों जैसे कि इसने कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है अल्लाह ताला के बेटे नहीं हैं, तो अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैगंबर भेजा था उन कौमों को लिए जो कि अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाते हैं। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोस्तों अगर क़यामत के दिन अगर आ भी गया है तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है अपनी जो कौम है उनको कहेंगे कि आप मेरी नज़रों से दूर हो जाए, क्योंकि मैंने आपको कभी भी ये नहीं कहा कि मैं खुदा हूँ आप लोग मेरी इबादत करें, बल्कि ये जो बातें हैं आप लोगों ने अपने आप से बनाए हैं, अपने आप से आप लोगों ने इसमें मिलावट की है, बल्कि मैंने ऐसी कोई भी बात नहीं की। जैसे कि यहाँ पे आते हैं दोस्तों श्री कृष्ण के बारे में जो बात की है दोस्तों, इस तरह कहीं से भी लोग कहते हैं कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं, अगर आप लोगों ने बड़े लोगों से सुना होगा कि उनका बेटा नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो कहते हैं ऐसा इखलाकन हो, ऐसे उसको कहते हैं कि ए बेटे मेरे पास इधर आओ। तो ये तो एक इखलाक की बात हुई, एक अच्छाई की, एक इंसानियत की बात हुई। इसके पीछे हम नहीं जाएंगे कि उसने यही कहा था कि उसने यही कहा था। दूसरी ये अहम बात यह है दोस्तों, अक्सर जितने भी नान मज़हब वाले जो लोग होते हैं उनके ज़हनों में यही सवाल आते हैं
और फिर इस बंदे ने जो 2 किताबें उठाई हुई है उसमें जो है डॉक्टर जाकिर नाइक सवाल पूछ रहा है कि श्री कृष्ण ने जो है वो यही कहा था कि आप लोग जो है आप मेरे बेटे हो, मैं आप लोग का बाप हूँ। तो ऐसे कोई भी नहीं है। अगर आप इस बात पे यकीन कर सकते हो दोस्तों, अगर कोई भी ऐसा आम आदमी अगर आपको कहे कि आप नहीं, आप मेरे चुने हुए बेटे हो या आप मेरे बेटे हो, तो आप लोग उसको पकड़ कर मारेंगे। मैं कहता हूँ कि उसके साथ आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कुछ अजीब सी बात है। जैसे कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत बेहतरीन बात की है कि मेरे ऐसे बहुत से दोस्त हैं, अगर किसी ने मुझे ऐसे कहा कि नहीं आप मेरे मुंह बुलाए हुए बेटे हो, सही है, तो वो मेरा दोस्त नहीं है, बल्कि मैं उसको कहूँगा कि ये आप क्या कर रहे हो, लेकिन आप कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो। ऐसे तो बहुत कोई कह सकता है दोस्तों अखलाक के ज़रिए या कोई और के ज़रिए, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो दोस्तों बहुत बेहतरीन जवाब दिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये जवाब आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अगर कोई भी आपके पास ऐसा कोई कमेंट हो तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कर सकते हैं। वस्सलाम।